السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ مقصد کے تحت پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ خود واضح کر رہا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ جنات بھی اور انسان بھی صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ یعنی انسانوں کی پیدائش کا، انسانوں کی تخلیق کا، دنیا میں بھیجے جانے کا ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی مقصد، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک انسان کی پیدائش کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا تو انسان کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنی تخلیق کا، اپنی پیدائش کا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس پر توجہ دے، اس پر نگاہ رکھے۔ اب اگر کوئی آدمی نگاہ نہیں رکھتا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک انسان اپنی پیدائش کا، دنیا میں آنے کا مقصد اگر سمجھتا ہے، مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان جو اپنی پیدائش کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ آج ہر انسان سے پوچھا جائے، ایک انسان سے سوال کیا جائے، کیا آپ لوگوں میں اچھے ہیں؟ آپ لوگوں میں بہتر ہے؟ کم و بیش ہر انسان کا جواب یہی ہوگا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ لیکن کیا صرف زبانی دعویٰ کر لینا انسان یہ جواب دے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، تو کیا انسان کے صرف یہ کہہ لینے سے کہ میں سب سے اچھا ہوں، اپنے بارے میں خود گواہی دے دینا کہ دوسرا ٹھیک نہیں ہے، میں ہی اچھا ہوں، کیا اس کا جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے طور پر وہ جواب دے رہا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے طور پر اپنے بارے میں اگر یہ گواہی دے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ انسان اچھا نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ میں، قرآن و احادیث میں
اللہ तबारक व तआला ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद तालीमात, चंद खूबियाँ ऐसी जिक्र फरमाई हैं कि अगर कोई आदमी उन खूबियों को, उन नेकियों को, उन कामों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करता है, अपनी ज़िंदगी में लाता है, उसके मुताबिक अमल करता है, तो अल्लाह भी कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि ये इंसान बेहतर है। सबसे पहला इंसान, अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है, हर इंसान की आरज़ू, तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि मैं सबसे अच्छा बन जाऊं, सबसे बेहतर बन जाऊं, लोगों में सबसे ऊंचा और आला मकाम मुझे मिल जाए। अगर एक इंसान की ख्वाहिश है, अगर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह की निगाह में, इस्लाम की निगाह में, शरीयत इस्लामिया की नज़र में उसका ऊंचा मकाम हो और लोगों के निगाह में भी वो अच्छा बनना चाहता है, तो उसे कुछ करना होगा। सबसे पहला काम, अगर एक इंसान चाहता है कि वो अच्छा बन जाए, लोगों में सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो, सबसे पहला अमल, सबसे पहला काम ये है कि इंसान ईमान लाए और ईमान लाने के बाद नेक अमल करे। ईमान के बगैर इंसान चाहे जितनी बड़ी सी बड़ी नेकियां कर जाए, ईमान नहीं लाया है, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज भी कर ले, सदका व खैरात भी कर ले, रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां भी निभाए, मिस्कीनों को खाना भी खिलाए, वो काम जो इस्लाम में महबूब है, इस्लाम में पसंदीदा है, अगर आदमी ईमान लाने के बगैर उन कामों को अंजाम देता है, तो शरीयत ये कहती है कि ईमान नहीं लाया है, अगरचे वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन ईमान नहीं लाया है, शरीयत ये कहती है कि उस अमल की कोई अहमियत नहीं, उस अमल की कोई अहमियत नहीं है। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी के बारे में सवाल किया। नबी के ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में एक आदमी था, इब्न जुदआन, बड़ा मशहूर आदमी था और नेकी के हर काम में आगे आगे रहता था। हर काम, सिला रहमी हो, मिस्कीनों को खाना खिलाना हो, ये आगे रहता था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती हैं, सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह, इब्न जुदआन कान फिल जाहिलिया यसिलुर रहिम व युतइमुल मिस्कीन व युहसिनुल जिवार। अल्लाह के नबी, आप जानते हैं इब्न जुदआन ज़माने जाहिलियत का आदमी है, लेकिन उसके बावजूद ये आदमी सिला रहमी करता है, रिश्ते नाते बरकरार रखता है, मिस्कीनों को खाना खिलाता है और वयुहसिनुल जिवार, और पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करता है। आप गौर करें, सिला रहमी, रिश्ते नाते जोड़ना, ताल्लुकात को बरकरार रखना, ये इस्लाम की तालीम है। गरीबों को खाना खिलाना, ये इस्लाम की तालीम है। और पड़ोसियों के साथ अच्छाई से पेश आना, ये इस्लाम की तालीम है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती हैं, फहल ज़ाका यनफ़उ या फहल ज़ाका नाफ़िउ, अल्लाह के रसूल आप ये बतलाइए, इब्न जुदआन ये सारे काम करते हैं, क्या इन कामों का फायदा उनको होगा, यानी उन्हें कुछ फायदा मिलेगा, अज्र मिलेगा, बदला मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यनफ़अहु, उन्हें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। सिला रहमी कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छाई से पेश आ रहे हैं और गरीबों को खाना खिला रहे हैं, जो कि इस्लाम की तालीम है, लेकिन उसके बावजूद उनको इन नेकियों का कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहु लम यकुल यौमन क़त्तु रब्बि ग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, इसलिए कि इब्न जुदआन ने कभी भी, जब तक जिंदा रहा, कभी भी उसने अल्लाह को रब नहीं माना, उसने अल्लाह को रब नहीं माना, ये नहीं कहा रब्बि ग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ कर देना। एक तरफ नेकियां हैं और दूसरे तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यह आदमी ईमान नहीं रख रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसकी नेकियों का उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो पहली चीज
اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھا بن جائے، سب سے بہتر بن جائے، ضروری ہے کہ آدمی اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر، اسی طریقے سے کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں تمام چیزوں پر آدمی ایمان لائے، اس کے بعد جا کر عمل کرے۔ اسی آیت میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لا دیا، ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا اور ایمان کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے ارکان ہیں، تمام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ قبول کیا، اللہ پر ایمان لایا، اس نے مانا، دل سے تسلیم کیا کہ ہاں اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، رسول دنیا میں بھیجے گئے، اللہ نے کتابیں نازل کی، قیامت برحق ہے، اچھی بری تقدیر ہے، سب کو مانا۔ ماننے کے بعد صرف انسان یہ نہ کہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، اور عمل نہ کرے، تب بھی انسان نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کی تعلیم ہے، نماز پڑھی جائے، میں مانتا ہوں اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے، نماز کا اقرار کر رہا ہے، لیکن نماز نہ پڑھے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے، صاحب استطاعت کے باوجود آدمی حج نہ کرے، آدمی کے پاس طاقت ہے، صحت ہے، رمضان کا مہینہ پایا، روزہ نہ رکھے، تب بھی نقصان ہے۔ ایمان کا اقرار ہے، لیکن آدمی اگر عمل نہیں کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دینی دروس میں حاضر ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے میں حاضر ہوتے ہیں، اور دینی پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، صرف معلوم کر لینا، صرف تسلیم کر لینا، مان لینا کہ یہ باتیں اسلام کی ہے، کافی ہے؟ نہیں کافی ہے، پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا۔ آپ مانتے ہیں کہ نماز ہے، ہاں ہے، لیکن کیا صرف مان لینے سے کام چلے گا؟ نہیں، آپ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کوئی کتاب ہے، دل سے بھی مان رہے ہیں، زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی زندگی میں آپ قرآن کھول کر دیکھ نہیں رہے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، حیثیت ہے، حج کر سکتا ہوں، آپ کریں نا، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ کے علم میں اگر اسلام کی باتیں آ گئیں، اور بالخصوص آج کے دور میں جبکہ ہر آدمی جانتا ہے، کم و بیش اسلام کی تعلیمات اسے معلوم ہے، اگر عمل نہیں کر رہا ہے، آج کا سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی باتیں ہزاروں جانتے ہیں، لیکن عمل میں زیرو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یاد رہنی چاہیے، کل قیامت کا دن ہوگا، آدمی اگر علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان سے، ابن آدم کے ہر شخص سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور جب تک سوال کا جواب نہ دے دے، انسان کا قدم ہلے گا نہیں۔ آج انسان اگر کسی معاملے میں پھنستا ہے، پیسہ وغیرہ دے کر آدمی ہٹ جاتا ہے، مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، وہاں نہیں قدم ہلے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے لا تزول، قدم ہلیں گے نہیں، ہل نہیں سکتا ہے آدمی جب تک 5 سوال کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گوائے؟ اللہ نے عمر دیا تھا 60 سال، 70 سال، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ، کیا کیے؟ اچھے کاموں میں کھپائے یا برے کاموں میں ختم کر دیے؟ پوری زندگی 60 سال 70 سال آپ کیے کیا؟ جواب دیا جائے۔ وعن شبابہ فیما افناہ،
इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन पीरियड, सबसे बेहतरीन वक्त जवानी। जवानी कहाँ खपा है, कहाँ खत्म कर दिए? जवाब दिया जाए। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ह। अल्लाह ने जो माल दिया था, आप माल जो कमाए थे, कैसे कमाए थे, खर्च कैसे किए थे? दो बातें, दो सवाल माल के बारे में होगा। आज माल कमाने का दौर है, मुकाबले का दौर है। हर इंसान की तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि मैं फला से आगे बढ़ जाऊं, मैं फला आदमी से आगे माल में आगे बढ़ जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह सवाल करेगा, माल कैसे कमाएं? हलाल तरीके से, हराम तरीके से? जवाब दिया जाए। अगर तरीका अच्छा था, हलाल तरीके से कमाए थे, खर्च कहाँ किए थे? हलाल रास्ते में, हराम रास्ते में, जायज रास्ते में, नाजायज रास्ते में, अच्छी चीजों में, बुरी चीजों में? जवाब दिया जाए। वफीमा अलिम मादा अलिम या मादा आमिल फीमा अलिम। जितनी जानकारी थी, अमल कितना किए? जानकारी बहुत है, इल्म बहुत है, मालूमात बहुत है, अगर अमल नहीं है तब भी नुकसान से खाली नहीं है। इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, पूछेगा, ऐ इंसान, तुझे बहुत कुछ मालूम था, उस इल्म के मुताबिक अमल किए या नहीं किए? इसीलिए अल्लाह ये फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, अगर ईमान ला लिए हो और अमल सालेह किए हो, नेक काम किए हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तालीमात दी थी उसके मुताबिक अमल किए थे, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। मखलूक में, तमाम इंसानों में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर इंसान वो है जो ईमान लाए और ईमान के बाद नेक अमल करें। नंबर 1। नंबर 2, सबसे अच्छा कौन? हर इंसान ये चाह रहा है और उसकी ख्वाहिश भी है कि मैं सबसे अच्छा बन जाऊं, मैं सबसे अच्छा इंसान हो जाऊं। क्या किया जाए? कौन सा काम किया जाए? या कौन लोग हैं जिनको इस्लाम में, शरीयत में, कुरान में और हदीस में सबसे अच्छा कहा गया? पहला तो वो इंसान जो ईमान के बाद नेक अमल करे। नंबर 2, वो इंसान जिसका ताल्लुक कुरान हकीम से सबसे ज्यादा हो, कुरान खुद सीखता हो और दूसरों को सिखाता हो। माफ कीजिएगा, आज के दौर में जो कुरान पढ़े पढ़ाए उसको सबसे नीच निगाह से देखा जाता है, हकारत की निगाह से देखा जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रखी जाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, माना कि नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो लोग कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं और कुरानी करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, सबसे अच्छे लोग हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमा। लोगों, तुम में सबसे अच्छा, यानी उससे अच्छा कोई नहीं, तुम में सबसे अच्छा वो आदमी है, वो इंसान है, चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। कुरान जो इंसान सीखे और दूसरों को सिखाए, नबी फरमाते हैं कि वो सबसे बेहतर है, और वाकई सबसे बेहतर है, और अल्लाह की निगाह में भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में भी है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बुखारी में भी रिवायत मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, ग़ज़वा उहद का वाक़या है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा उहद में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कुरान के एक्सपर्ट थे, कुरान के माहिर थे, कुरान से उसका बहुत अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन शहीद हो गए, शहीद हो गए। जाबिर कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमउ बैन अर्रजुलैन मिन क़त्ल उहद फी सौबिन वाहिद, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के मक़तूलीन को, जो ग़ज़वा उहद में, उहद की लड़ाई में शहीद हो गए थे,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो आदमियों को एक ही कपड़े में रखते थे, एक ही कपड़े में जमा कर रहे थे, और आप पूछते थे जब कब्र में रखने की बात आती, जब कब्र में दफनाने की बात आती, आप पूछते अय्युहुमा अक्बर वक़्ज़न लिल कुरान, इन दोनों में सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था, यानी सबसे ज्यादा कुरान इन दोनों में से किसका ताल्लुक कुरान से ज्यादा था। फ़इज़ा उशीर लहुमा इला अहदिहिमा क़द्दमहु फिल लहद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों में से उस सहाबी को आगे कर देते जो कुरान का सबसे ज्यादा जानकार होता, सबसे ज्यादा जानकार होता, और आप कहते अना शहीदुन अला हाउलाई यौमल क़ियामा, मैं कल क़यामत के दिन इन लोगों के लिए गवाह बनूंगा, इन लोगों के लिए गवाह बनूंगा। पता ये चला कि जो आदमी कुरान से रिश्ता रखता है, अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, और मक़तूलीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ाते हैं। इंसानों को, मुसलमानों को ताज्जुब नहीं होता है, शरीयत का एक कायदा है, शरीयत का एक हुक्म है कि नमाज के लिए इमामत वही कराए, इमाम वही बने जो लोगों में सबसे ज्यादा कुरान का जानकार हो, जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद हो, वो लोगों का इमाम बनेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यउम्मुल कौम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, लोगों में इमामत वही कराए, लोगों को वही नमाज पढ़ाए जो कुरान का सबसे ज्यादा जानकार हो, जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद हो, और कुरान के मसाइल और अहादीस के मसाइल याद हो, वो सबसे ज्यादा जिसको कुरान याद हो वो इमाम बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल किया गया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिनको कुरान बराबर याद हो, सबको बराबर याद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन कानू सवाअन फिल क़िराअह, अगर कुरान में सब बराबर हों तो क्या किया जाए, फ़अअलमुहुम बिस्सुन्नह, तो जो आदमी हदीस का सबसे ज्यादा जानकार हो वो आदमी इमामत कराए। उसके बाद अलग तरतीब बहुत सारी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आदमी कुरान से रिश्ता रखता है, अल्लाह उसको बुलंदी अदा करता है, लोगों के सामने अल्लाह एक मकाम और एक रुतबा दे देता है। और सच फरमाया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई आदमी दुनिया में सर उठाकर जीना चाहता है, शान से जीना चाहता है, तो जरूरी है कि वो अपना रिश्ता कुरान से जोड़े। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अमा इन्न नबिय्यकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़ाल इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। ए मेरे सहाबा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों के दरमियान ये बात कह रहे हैं कि ए मेरे सहाबा, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान करके जा चुके हैं, आपका इंतकाल हो चुका है। आप कौन सी बात बयान किए हैं, आप क्या फरमा कर जा चुके हैं? उमर बिन खत्ताब कहते हैं इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए, इस कुरान की बरकत के जरिए अल्लाह कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है, कुछ लोगों को ऊंचा मकाम अता करता है। कौन लोग हैं? जो कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करते हैं, अल्लाह उनको बुलंदी अता करता है। और जो कौम, जो मुसलमान कुरान को भुला दे, कुरान उसकी जिंदगी में ना हो, कुरान की तालीमात उसकी जिंदगी में ना हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वयज़अु बिही आख़रीन, अल्लाह उस कौम को जलील कर देता है, अल्लाह उस कौम को जलील कर देता है। जो कौम, जो समाज, जो मुआशरा आज के दौर में जिल्लत का शिकार है, आज मुसलमानों को शिकायत है हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई मकाम नहीं है, हमारा कोई रुतबा नहीं है, हम जीरो हैं। क्यों है? क्यों है? आपने कभी वजह पर गौर किया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उस कौम को बुलंदी अदा करता है जो कौम कुरान से जुड़ी रहती है। सहाबा कराम की जिंदगियां पढ़िए, सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा मकाम दिया, क्यों? इस कुरान की बरकत की वजह से, दीन से जुड़े रहने की वजह से। अगर कोई आदमी चाहता है कि अल्लाह उसको बुलंदी अदा करे,
ضروری ہے کہ وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ سماج قرآن سے جڑ جائے، ورنہ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ ذلیل کر دے گا، اس قوم کو برباد کر دے گا۔ اور جو لوگ قرآن سے جڑتے ہیں، ایک تو سب سے بہتر ہے، اور وہ اللہ کے سب سے خاص بندے ہیں۔ بندے تو سبھی ہیں، سبھی بندے ہیں اللہ کے، لیکن خاص اور محبوب بندے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ یہ بات نبی صحابہ کرام کے بیچ میں رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ لوگ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہیں۔ اللہ کے مخصوص بندے وہ لوگ ہیں جو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ تو معاملہ دنیا کا ہے، یہ تو معاملہ دنیا کا ہے، مرنے کے بعد بھی یہی کتاب ایک انسان کے کام آنے والی ہے۔ انسان پریشان ہوگا، حیران ہوگا، کیسے بچ جائے جہنم سے، کیسے جنت میں داخل ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، اے میری امت کے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کے مطابق عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی قرآن، یہی کتاب کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی، سفارش کرے گی، اور اس کی سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے حق میں۔ وہ لوگ سوچیں، وہ لوگ غور کریں جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ان کو کون سفارش کرے گا؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی خاص طور پر فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے اپنا رشتہ رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی قرآن اپنے ماننے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ لیکن خاص طور پر وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص مقام دیا، ایک خاص رتبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی بہت ساری سورتیں، بہت سارے پارے، یہاں تک کہ 30 پارے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں محفوظ کر دیا، یعنی وہ قرآن کا حافظ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والے سے کل قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ارتقی ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اقرا، اے انسان، اے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، اقرا، پڑھتے جا، پڑھتے جا، ورتقی، اور جنت کے درجات پر چڑھتے جا، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طریقے سے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بے شک تمہارا مقام، تیرا درجہ اور تیری جگہ وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں عزت، قیامت کے دن عزت، اور مرنے کے بعد جنت میں درجات کی بلندی، یہ انہی لوگوں کے حق میں ملنے والی ہے جو آدمی اپنا رشتہ قرآن حکیم سے جوڑتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مخلوق میں، دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان۔ نمبر 3، سب سے اچھا کون؟
सबसे बेहतर कौन? वो आदमी जो अखलाक में सबसे अच्छा हो, अखलाक में, कैरेक्टर में लोगों से जब मिले तो अखलाक का सबूत दे, वो तमाम लोगों में सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। मसरूक कहते हैं कि कुन्तु जालिसन इंद अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, कि हम लोग बैठे हुए थे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के पास, अचानक उन्होंने इद जो हदीस सुना, वो हदीस बयान करने लगे, और हदीस बयान करने के बाद वो ये कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन फाहिशन वला मुतफहिशन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान गंदी नहीं थी, आप अपनी जबान से बुरी बात नहीं निकालते थे, आप जब भी बोलते थे अच्छी बात बोलते थे, अच्छी बात बोलते थे, और आप लोगों में सबसे अच्छे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी किया गया कि अल्लाह के नबी, लोगों में सबसे अच्छा कौन, लोगों में सबसे बेहतर कौन? आपने फरमाया इन्न खियारकुम अहासिनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। आज हम तौहीद को मानते हैं, हमारी तौहीद बहुत अच्छी, अकीदा बहुत मजबूत है, इबादत में भी हम अच्छे हैं, इबादत में कमी नहीं है, नमाज भी है हमारे पास, ज़कात भी है हमारे पास, सदका व खैरात भी है हमारे पास, अखलाक नहीं है। कदम कदम पर ये शिकायत मिलती है कि अहले हदीसों के अखलाक सही नहीं है, अहले हदीसों की बातचीत में नरमी नहीं है। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दुश्मनों से भी बदअखलाकी से पेश नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी खुद फरमाते हैं इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसीलिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ कि मैं अच्छे अखलाक को पूरा करूँ, अच्छे अखलाक का सबूत दूँ, और आपने अच्छे अखलाक का सबूत दिया। आप पर तरह तरह के मजालिम ढाए गए, कभी कभी आपको जान से मार देने की साजिश की गई, आपके गले को दबाया गया, सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की बच्चादानी लाकर रखी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर दिया गया, लेकिन कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद अखलाकी का जवाब बद अखलाकी से नहीं दिया। आपने नरम पहलू अपनाया, ताइफ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया, आप लहूलुहान हो गए, आपके खून आपके जूते में जम गए, आपसे कहा भी गया ए नबी, आप अगर इजाजत दे दें, आप सिर्फ इतनी बात कह दें कि इन दोनों पहाड़ियों के बीच ताइफ वालों को पीस दिया जाए, कुर्बान जाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत और अच्छे अखलाक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरे आदमी हैं, ये मेरे लोग हैं, ये अलग बात है, मैं इनको तौहीद की दावत दे रहा हूँ, ये तौहीद की दावत कबूल नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये लोग जब मर जाएंगे, गुजर जाएंगे, इनके पुश्त से निकलने वाली औलाद इंशाअल्लाह एक अल्लाह को मानेगी। और हुआ भी वही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का असर ये रहा कि आगे चलकर ताइफ वाले मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। क्यों हो गए? मारा गया, आपको सताया गया, आपके खिलाफ साजिश की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर लोगों का दिल जीता तो अखलाक की वजह से जीता, अखलाक पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ हमारे हबीब, ऐ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो रहम दिल हैं, आप जो इतने मेहरबान हैं, ये अल्लाह का एहसान है। वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़न, अगर आप सख्त दिल होते और सख्त मिजाज होते तो ये जो सहाबा हैं आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, आपके करीब ना होते, आपसे छट जाते, आपसे कट जाते,
لیکن آپ اتنے رحم دل ہیں, آپ اتنے مہربان ہیں کہ آپ کے رحم دلی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ آپ سے قریب ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مخالف ہے, ہماری جو بات نہیں مان رہا ہے, الگ بات ہے نہیں مان رہا ہے, لیکن اخلاق کا ثبوت اس طور پر دیا جائے کہ آئندہ وہ گواہی دے, وہ مانے کہ وہ آدمی اچھا ہے. میں اس کی بات نہیں مانتا لیکن آدمی برا نہیں ہے, آدمی کا اخلاق اچھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قدم قدم پر صحابہ گواہی دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے. یعنی آپ سے زیادہ اچھا اخلاق والا کوئی تھا ہی نہیں. اگر ایک آدمی, ایک مسلمان, چاہے مرد ہو یا عورت, اچھا بننا چاہتا ہے, لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہے, ضروری ہے کہ وہ آدمی, وہ انسان اپنا اخلاق اچھا کر لے. اخلاق درست, انسان درست, انسان سب سے بہتر. اگر اخلاق برا تو شریعت میں یہ کہا گیا کہ وہ انسان بھی برا. اچھا انسان کون, بہتر انسان کون؟ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو آدمی غریبوں کا خیال رکھے, اگر مسلمانوں سے ملاقات ہو تو سلام کریں, سلام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم من اطعم المسکین ورد السلام, کہ لوگوں میں تم میں سب سے اچھا ایک وہ انسان بھی ہے جو غریبوں کا خیال کرتا ہے. آج کا جو دور ہے, آج کا جو ماحول ہے, ہر آدمی کم و بیش اپنی فکر میں لگا رہتا ہے. میں تو ٹھیک ہوں, میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صبح میں بھی کھایا ہوں, شام میں بھی کھاؤں گا, اگلے دن بھی کھاؤں گا, میرا مسئلہ بہت اچھا ہے, میں ٹھیک ہوں. شریعت یہ کہتی ہے, اسلام کا قانون یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو اچھا مان لینا یا اپنے طور پر اپنے بارے میں بہتر جان لینا, صرف اپنا ہی خیال کرنا, شریعت میں اس کو اچھا نہیں کہا گیا, اچھا نہیں کہا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا وہ انسان ہے جو غریبوں کا خیال کرے. اور بطور خاص اگر کوئی آدمی ایسا ہے آپ کے معاشرے میں, آپ کے سماج میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے رشتہ دار میں, کہ غریب ہے, مفلس ہے, مارے شرم کے ہاتھ آپ تک نہیں پھیلا رہا ہے, تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی خبر گیری کریں. اگر اچھا بننا چاہتے ہیں, شریعت کی نگاہ میں بہتر بننا چاہتے ہیں, تو سماج کے غریب کا خیال رکھا جائے. اور آپ دیکھیں گے قرآن میں اور احادیث میں قدم قدم پر اس پر اکسایا گیا ہے, ابھارا گیا ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی غریبوں کا خیال کرے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے متقی بندے, نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. اور وَرَدَّ السَّلَامِ, سلام پھیلایا جائے. اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دیا جائے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس سماج میں رہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہمارے اور آپ کے مزاج کا ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ رہتے ہو, کبھی بھی انبن نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. لڑائی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, انبن بھی ہوگا, لیکن شریعت یہ کہتی ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑائی کو سامنے لا کر, دشمنی کو سامنے لا کر بات چیت نہ بند کیا جائے, بات چیت ختم نہ کیا جائے. آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے, لڑائی جھگڑے کے بعد لوگ قسم کھا لیتے ہیں, مر جاؤں گا ملاقات نہیں کروں گا, مر جاؤں گا یا وہ مر جائے گا, مرا ہوا منہ نہیں دیکھوں گا. یہ کون سا تصور ہے, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سی تعلیم ہے؟ حد تو یہ ہے کہ ماں باپ اگر کسی سے لڑائی ہو گئی, انبن ہو گئی,
खुद मरते दम तक मुलाकात नहीं करते हैं, औलाद को भी वसीयत कर देते हैं, औलाद को भी नसीहत कर देते हैं, बेटा तू जानता है, बेटी तुझे मालूम है कि मेरी किससे बनती है किससे नहीं बनती है, मैं मरते दम तक उसका मुंह नहीं देखूंगा, लिहाजा मैं तुम्हें भी वसीयत करता हूँ कि तुझे भी उससे मुलाकात भी नहीं करनी है और मिलना भी नहीं। कौन सी तालीम है, कौन सा इस्लाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वरद्द सलाम, अगर कोई आदमी बेहतर बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, तो सलाम का जवाब दे, सलाम का जवाब दे। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर होता ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा होती है और आदमी कसम खा लेता है और ये ठान लेता है कि मैं सलाम व कलाम सब बंद कर दिया हूँ और इसको जारी ना रखूंगा, इंसान है, एक ही मोहल्ले में है, रिश्तेदार है, मुलाकात भी हो सकती है, मुलाकात भी हो सकती है, एक ही रास्ते से आना जाना भी हो सकता है। इंसान जो गलती करता है, हदीस में उसको बयान कर दिया गया, इंसान लड़ाई के दौरान जो गलती करता है उसको हदीस में बयान किया गया है। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका तलास, किसी भी मुसलमान के लिए, अगर मुसलमान है, किसी भी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, यानी हराम है, किसी भी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से या मुसलमान बहन से बातचीत बंद कर दे। 3 दिन के अंदर सुलह सफाया हो जाना चाहिए। अगर चौथा दिन में इंसान दाखिल हो गया, मुजरिम है, गुनाहगार है, वो गुनाहों में डूब रहा है और बातचीत बंद है। होता क्या है, फयल तकियान, कभी रास्ते में मुलाकात हो गई, एक साहब उधर से आ रहे हैं और दूसरे साहब इधर से जा रहे हैं। होता क्या है, उधर वाला आदमी देखता है कि वो आ रहा है, इधर वाला आदमी भी देखता है कि आ रहा है, दोनों रास्ता बदल देते हैं। फयसुद्दु हादा वयसुद्दु हादा या वयुरिज़ु हादा वयुरिज़ु हादा, एक साहब उधर मुड़ गए, दूसरे साहब इधर मुड़ गए। अगर दोनों ये गलती कर रहे हैं, दोनों अच्छे नहीं है, दोनों में कोई अच्छा नहीं है, कोई बेहतर नहीं है। बेहतर कौन है, वखैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, वखैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, दोनों में सबसे अच्छा वो है जो सबसे पहले सलाम कर ले, सबसे पहले सलाम कर ले। मुसलमान सलाम क्यों नहीं करता है पता है, उसको मालूम है, उसे पता है अगर सलाम करूंगा बात शुरू हो जाएगी, बात शुरू हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और शैतान जो है नहीं चाहता है कि दोनों में मुलाकात हो जाए, दोनों का रिश्ता बरकरार हो जाए। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि दोनों बेहतर हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान ये नहीं चाहता है कि दो मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहब्बू, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन ना हो जाओ, ईमान वाले ना हो जाओ, और तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन तहाबबतुम अफ्शुस सलाम बैनकुम, क्या मैं तुम्हें वो तरीका, वो नुस्खा, वो बात न बतला दूं, अगर उस नुस्खे पर, उस नेकी पर या उस काम पर अमल करो, आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफ्शुस सलाम बैनकुम, अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सबसे बेहतर बनना है तो इस बात को सामने रखा जाए कि मुसलमानों से मुलाकात हो तो सलाम किया जाए। और ख़ास तौर पर अगर लड़ाई झगड़े के बाद अगर आदमी बातचीत बंद कर दे तो उसकी हद 3 दिन है, बस, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ये बात है, आज ही तौबा करें, अल्लाह से डरें, नबी की हदीस सुनने के बाद अमल करने की कोशिश करें। अगर नहीं करते हैं तो आप मुजरिम हैं, मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं और गुनाह में आगे बढ़ रहे हैं। एक आदमी अच्छा बनना चाहता है,
अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं, क्या किया जाए? क्या किया जाए? लोगों में सबसे अच्छा कौन? लोगों में सबसे अच्छा है एक इंसान वो भी है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान से वो महफूज हो। आज एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जबान से शिकायत है, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के हाथ से शिकायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्युल मुस्लिमीन खैर, अय्युल मुस्लिमीन खैर, अल्लाह के नबी मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन, सबसे बेहतर मुसलमान कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। आज एक मुसलमान अपनी जबान के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए और अपने अमल के जरिए, अपने किसी गलत हरकत के जरिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ दे रहा है और पक्का मुसलमान बना हुआ है, सबसे अच्छा मुसलमान बना हुआ है। अपने तौर पर वो हो सकता है, अपने एतबार से वो हो सकता है, लेकिन हदीस ये कहती है कि एक मुसलमान की जबान से कभी भी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जबान से कोई ऐसी बात न बयान करें, किसी के बारे में कोई ऐसी बात न कहें कि जब उसे पता चले, जब उसे मालूम हो तो उसे तकलीफ पहुंचे। आपने बात कह दी, आपने बात बयान कर दी, लेकिन जिसके बारे में आपने कहा, जिसके बारे में आपने बयान किया या फेस टू फेस सामने बयान किया, उसको तकलीफ हो गई, उसको तकलीफ हो गई, या बिला वजह बगैर किसी गलती के, बगैर किसी जुर्म के आपने थप्पड़ भी मारा, आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं, आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं। अच्छा मुसलमान होने के लिए जरूरी है, बेहतर बनने के लिए जरूरी है कि आपकी जबान भी महफूज हो। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मत। जबान सिर्फ इसलिए नहीं दी गई है कि आदमी जायज ना देखे, नाजायज ना देखे, हलाल ना देखे, हराम ना देखे, जबान खोलते चला जाए। नहीं, जबान की पकड़ है, जबान की गिरफ्त है। इंसान क्या कुछ बोल रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है, और कल क़यामत के दिन किताब की शक्ल में पढ़कर इंसान समझेगा, इंसान याद करेगा अपने गुनाहों को। लिहाजा जबान का गलत इस्तेमाल से बचा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आदमी दो चीजों की जमानत देगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ, एक जबान की और एक शर्मगाह की। यानी जबान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल अगर कोई आदमी करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं उसे जन्नत की जमानत नहीं दे सकता। लेकिन जो आदमी जबान की हिफाजत कर रहा है, शर्मगाह की हिफाजत कर रहा है, प्यारे नबी फरमाते हैं मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। लिहाजा अगर कोई आदमी ये चाहता है कि सबसे अच्छा बन जाए, सबसे बेहतर बन जाए, तो अपनी जबान और अपने हाथ की हिफाजत करे। एक आखिरी बात, अगर कोई आदमी सबसे अच्छा बनना चाहता है, सबसे बेहतर बनना चाहता है, जाहिर आपका बहुत अच्छा है, शक्ल सूरत आपके बहुत अच्छे हैं, लिबास कपड़ा आपका बहुत खूबसूरत है। इस्लाम शक्ल सूरत और लिबास को नहीं देखता, नहीं देखता। आपका कपड़ा चाहे पुराना है, आपका चेहरा चाहे जैसा भी हो, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह दिल को देखता है। दिल के अंदर अगर किसी तरह की गंदगी है, बुराई की गंदगी, हसद की गंदगी, कीना की गंदगी, बुग़्ज़ व अदावत की गंदगी, नफरत की गंदगी, दुश्मनी की गंदगी, इसको पाक कर लिया जाए, इससे दिल को साफ कर लिया जाए। अगर दिल में ये है तो इसको खत्म किया जाए। अगर अच्छा बनना है, अगर बुराई लाना है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर अच्छे लोगों के लिस्ट में आना चाहते हैं, मखलूक में, दुनिया में, इंसानों में अगर सबसे अच्छा बनना है, तो जरूरी है कि जाहिर के साथ साथ बातिन भी साफ हो, दिल भी साफ हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्युल मुअमिनीन अफजल, अय्युल मुअमिनीन अफजल। इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी लोगों में सबसे अफजल कौन है, लोगों में सबसे अच्छा कौन है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदूकुल लिसान मखमूमुल क़ल्ब, दो तरह के लोग सबसे अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा सदूकुल लिसान नारिफु फमा मखमूमुल क़ल्ब, अल्लाह के नबी सदूकुल लिसान हमको समझ में आ रहा है, यानी जो आदमी जबान का सच्चा हो, जो आदमी हमेशा सच बोले, सच का साथ दे, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन मखमूमुल क़ल्ब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाज़िह किया, कहा मखमूमुल क़ल्ब कहते हैं हुवा तक़िय्यु नक़िय्यु ला इत्म फ़ीहि वला ग़िल्ल वला हसद, वो दिल जिस दिल में गुनाह ना हो, वो दिल जिस दिल में गुनाह के जज्बात ना हो, वो दिल या वो इंसान जिसके दिल में हसद ना हो, कीना ना हो, आपस में दुश्मनी ना हो, जो दिल इन बुराइयों से पाक हो, वो महमूमुल क़ल्ब है और ये तमाम लोगों में सबसे बेहतर है। आज इंसान का दिल साफ नहीं है। आज इंसान के बारे में गवाही दे देता है, साफ लफ्जों में कह देता है फलां साहब दिल के अच्छे नहीं हैं, उनका दिल बड़ा गंदा है, बड़े बुरे दिल के हैं। एक आदमी अगर अच्छा बनना चाहता है तो दिल को साफ किया जाए, दिल को पाक रखा जाए, इसलिए कि सारा नेकियों का दारो मदार इंसान के दिल पर है। अगर दिल सही नहीं है, इंसान नेकियां भी कर कर नुकसान उठाएगा। एक आदमी अगर दिल का साफ है, पाक है, मुसलमानों के खिलाफ हसद नहीं है, कीना नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत सुनाते हैं, जन्नत की खुशखबरी देते हैं। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम लोग बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए, आप भी बैठे हुए हैं। क्या हुआ? आप अचानक कहते हैं यत्लू अलैकुमुल आन रजुलुम मिन अहलिल जन्नह, ए मेरे साहबा, एक आदमी है जो अभी अभी आएगा, वो जन्नती है। एक आदमी है जो मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला है, वो जन्नती है। सहाबा चलते फिरते जन्नती थे, चलते फिरते नबी गवाही दे रहे हैं कि वो जन्नती हैं। सहाबा की निगाहें उस आदमी की तरफ है, देखते हैं कि अचानक एक आदमी आ रहा है और वजू किए हुआ है, वजू का पानी टपक रहा है। आने के बाद बाएं हाथ में जूता या चप्पल लिए हुए हैं, बड़े कायदे के साथ मस्जिद में दाखिल होते हैं और नमाज पढ़ने के बाद चुपचाप चले जाते हैं। दूसरे दिन अल्लाह के नबी यही बात दोहराते हैं कि एक आदमी आने वाला है जो जन्नती है। साहबा देख रहे हैं कि वही आदमी आ रहे हैं, आने का वही तरीका है। तीसरे दिन भी वही मामला पेश आता है, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, वही बात कर रहे हैं, आने वाले वही सहाबी हैं। उस मजलिस में, उस मस्जिद में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस भी मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहकर चले गए, आप उठ गए। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस उस सहाबी के पीछे पीछे चले गए और घर के दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो सहाबी देखते हैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस को, कहते हैं क्या बात है, क्यों आए? सलाम कलाम के बाद कहते हैं कि मेरा एक मसला है। क्या है? मसला ये है कि मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान लड़ाई हो गई है और 3 दिन तक मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या आप मुझे रखेंगे? क्या आप मुझे मेहमान बनाएंगे? सहाबी थे, नेक थे, मेहमानी का जज्बा था, मेहमान नवाजी का जज्बा था। कहा ठीक है, आप रहिए। वो 3 दिन तक उनके पास रहे और वो इसलिए गए थे कि मुझे देखना है कि करते क्या है, ये कौन सा खास अमल कर रहे हैं, कौन सी नेकी इनकी जिंदगी में है कि 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नती 3 दिन तक ठहरे रहे और देख रहे हैं, निगरानी में लगे हुए कि कर क्या रहे हैं। नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, नबी की सोबत मुझे भी हासिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बातें बतलाई हैं मैं भी जानता हूँ। 3 दिन गुजरने के बाद वो कहते हैं कि 3 दिन गुजर गए
वादे के मुताबिक मैं अब यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ, लेकिन जिस मकसद से मैं यहाँ आया था 3 दिन गुजारने के लिए, उस मकसद में मैं नाकाम हूँ। मकसद में नाकाम हूँ इसलिए कि कोई काम अलग से स्पेशल हमने आपको करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा है। चुनांचे वो सहाबी बोलते हैं कि आपने जो कुछ देखा है बस वही मैं करता हूँ। रात में अगर नींद खुल गई, थोड़ी बहुत अल्लाह का नाम ले लेता हूँ और फजर से पहले उठकर मस्जिद में जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, दूसरी कोई खास नेकी नहीं है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि ऐसा है कि मेरा और मेरे अब्बू के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। मैं आपको देखने आया था कि आप करते क्या हैं, जिसकी वजह से आपको जन्नत की बशारत दी गई। चुनांचे वो बात होने के बाद वो आगे बढ़ गए। जैसे जाने लगे, वो सहाबी दोबारा बुलाते हैं कि आप आइए, देखिए आपने जो कुछ 3 दिन तक देखा है उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो देखा मैं वही करता हूँ, उससे ज्यादा कोई काम नहीं करता हूँ। बस एक बात है मेरे अंदर, एक बात है मेरे अंदर, मैं अपने दिल में किसी भी मुसलमान के खिलाफ कीना नहीं रखता हूँ, दुश्मनी नहीं रखता हूँ, हसद नहीं रखता हूँ, मेरा दिल इससे पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने कहा, हादिही लती बलगत बिक, यही वो नेकी है, यही वो चीज है जो आपको इस मकाम तक, इस रुतबे तक पहुंचा दी। यानी आपका दिल पाक है, आपका दिल साफ है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आपको जन्नत की बशारत सुना रहे हैं, आपको जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। वनहनु ला नुतीक, वनहनु ला नुतीक, हम लोग इसकी ताकत नहीं रखते हैं, यानी हम इतना पाक नहीं है, हमसे हसद हो जाता है, हमसे कीना हो जाता है, लेकिन आप जितना बचे हुए हैं हम लोगों से नहीं होता है। लिहाजा प्यारे नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतर वो इंसान है जिसका दिल सबसे ज्यादा पाक हो। एक हदीस के अंदर एक और इंसान का तस्करा किया गया जो सबसे बेहतर है। आपसे बाज़ाब्ते सवाल किया गया, पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन? अय्युन्नासि खैर, लोगों में सबसे अच्छा कौन? आप फरमाते हैं, मन ताला उम्रुहु व हसुन अमलुहु। बहुत प्यारी और बड़ी गहरी बात अल्लाह के नबी कहें, सबसे अच्छा वो इंसान जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छा हो। उम्र लंबी हो, अमल अच्छा हो, क्या मतलब? पता ये चला कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर, या कुछ लोग होंगे, हो सकते हैं, अल्लाह ने बहुत लंबी उम्र दी, 60, 70, 100 से भी ऊपर चले गए, जिंदगी में नेकी नहीं है, जिंदगी में अच्छे अमाल नहीं है। क्या मतलब है उस जिंदगी का? क्या मकसद है उस जिंदगी का? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे बुरा इंसान वो है मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु। सबसे खराब और बुरा इंसान वो है जिसको अल्लाह ने लंबी उम्र दिया, अमल अच्छा नहीं है। क्या सुधरने के लिए, संभलने के लिए, अच्छा बनने के लिए 60 साल 70 साल कम है? कम है। अल्लाह के इबादत गुजार बनने के लिए कम है। कल क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन पूछेगा, इंसान जहन्नम की हौलनाकी को देखकर अल्लाह से कहेगा, रब्बुल आलमीन एक मौका दे दे, एक चांस दे दे, जो गलती, जो गुनाह करके आया हूं दोबारा नहीं करूंगा, एक मौका दे दे, एक चांस दे दे। जानते हैं अल्लाह क्या कहेगा? अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। क्या मैंने तुम्हें इतनी इतनी उम्र नहीं दी थी? वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था। डराने वाले से दो मतलब है, कुरान की बात पहुंची थी, हाँ पहुंची थी, हदीस की बात पहुंची थी, हाँ पहुंची थी, नसीहत क्यों नहीं हासिल की है? सुधर क्यों नहीं गए? वजाअकुमुन नज़ीर, क्या तुम्हारे सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफेद नहीं हो गए थे?
क्या संभलने में सुधरने में इतना टाइम लग गया? बूढ़े हो गए तब भी नहीं समझ सके। लिहाजा लंबी उम्र का मिल जाना अच्छे अमाल के साथ बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान को लंबी उम्र मिले, बूढ़ा हो जाए, जिंदगी में अल्लाह का नाम नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं है, तो वो जिंदगी वबाल जान है। और दुनिया का सबसे बुरा इंसान वो है जिसको लंबी उम्र मिले, अमल बुरा हो। सबसे बेहतर कौन? मन ताला उम्रुहु व हसना अमलुहु। सबसे अच्छा इंसान वो है जिसको उम्र लंबी मिले, अमल अच्छा हो। इसीलिए शरीयत ये कहती है कि परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त, तकलीफ के वक्त, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, मौत की तमन्ना मत करो, मौत की तमन्ना मत करो, इसलिए कि जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है, शर्त यह कि अमल अच्छा हो। लिहाजा जो आदमी अच्छे अमल के साथ लंबी जिंदगी पा रहा है वो लोगों में सबसे बेहतर है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये चंद बातें थी अहादीस की रोशनी में जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर कहा ऐसे ऐसे लोग अच्छे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो बातें जिक्र की गई है, कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अच्छे काम करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, जितने लोग बैठे हैं और जहाँ तक आवाज़ जा रही है, तमाम लोगों को अच्छा बनने और दूसरों को अच्छा बनाने की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन मरते दम तक तौहीद की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन शिर्क और शिर्क की जितनी भी किस्में हो सकती हैं, रब्बुल आलमीन तमाम से हम सबकी हिफाजत फरमा। जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो, सही अकीदे की बुनियाद पर हो। आमीन। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिना अल-बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।